Hello students, today we are going to discuss chapter 12th of class 10th science. Name of the chapter is electricity. Today we will discuss the topics electric current, potential difference, ammeter and voltmeter and a few numericals of these topics. First of all, electric current. Dear students, you must know what is current. Current is actually flow of anything, continuous flow of anything. And if the flowing thing is water, then it is called water current, and if flowing thing is charge, then it is called electric current. Electric current is the time rate of flow of charge. It is given by electric current is equal to charge upon time. The symbol of electric current is I. I is equal to Q upon T, where Q is the charge and T is the time taken. SI unit of electric current is ampere. It is denoted by capital A. SI unit of electric charge is coulomb. It is denoted by capital C. 1 coulomb is the charge contained in nearly 6 into 10 raised to power 18 electrons. कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 into 10 raised to power 18 electrons nearly. We will calculate it later on. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. Similarly, charge on 1 proton, the same charge but with positive sign. Charge on 1 proton is equal to 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb, that is positive. Charge on electron is equal to charge on proton, only difference is of the signs. On electron it is negative and on protons it is positive. The electric current is expressed by a unit called ampere. It is denoted by capital A, named after the French scientist André Marie Ampere. जो एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. सो वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर. Electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज दैट करंट flows through a conductor when 1 coulomb charge flows through it in 1 second. Currents are of many types. Let us see. Here time is taken along x-axis and current is taken along y-axis. It is just for the sake of your knowledge. This is the graph A. It is represented by blue line and it is parallel to time axis. It means current is not changing, time is continuously increasing. It shows the constant current or steady current. Graph A, steady current which does not vary with time. Here time is increasing but current is constant. This is another graph B. What is happening here? Time is increasing, current is also increasing with constant rate. Here current is changing. In graph C, current is also changing, but in graph B, current is changing by constant rate, but in graph C, current is changing not with a constant rate. This is the graph B and C. Varying current whose magnitude varies with time. ग्राफ B में भी और C में भी करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और ग्राफ A जो है उसमें करंट कांस्टेंट है. And this is graph D represented by this red line. This is the graph of alternating current. Alternating current क्या होता है? जस्ट इस तरह से
ये कंटिन्यू वेरी करता है बट इन ए सिस्टमेटिक मैनर. फर्स्टली पॉजिटिव, लूप इज above the time axis, then below the time axis, then again above, then again below. So this is the graph of alternating current. Alternating current is that current whose magnitude varies continuously and direction changes periodically. Alternating current में क्या होता है, between two specific limits current change होता है और वो continuously alternatively जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद. These are the four types of graphs. Graph A represents the constant current, graph B and C varying current, and graph D is alternating current. Small quantities of electric current are expressed in milliampere or in microampere. नॉर्मली तो हम करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं. जब करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हम उसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं. 1 milliampere, it is represented by small m, milli, represented by small m. 1 milliampere is equal to 10 raised to power minus 3 ampere. यदि यहाँ पे आप स्मॉल m की जगह कैपिटल M लिख देंगे तो ये मेगा बन जाएगा. मेगा का मतलब है 10 रेज टू पावर 6 पॉजिटिव में, और मिली है 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर. नेक्स्ट इज माइक्रो एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर. मिली एम्पियर में आएगा माइनस 3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में आएगा माइनस 6 एम्पियर. एमीटर. व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. ओके, एमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है किसी सर्किट में. ठीक है, सिंबल ऑफ एमीटर. सी दिस पिक्चर. इसमें क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के सेंटर में ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, और वन साइड, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव एंड राइट साइड इज नेगेटिव. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू बैटरी और सेल. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर. जस्ट एक सर्कल बनाना है और उसके बीच में आपने कैपिटल ए लिख देना है. पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिपेंड करता है कि इसके साथ जो आपने सेल और बैटरी कनेक्ट किया हुआ है वो किस तरह से किया हुआ है. ये चेंज भी हो सकते हैं. दिस इज द सर्किट. इसमें एमीटर को क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. तो दिस इज द, यू कैन सी इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड. जिस सर्किट में आपने करंट को मेजर करना है उस सर्किट में आपने एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होता है. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, तो यहाँ पे इस सर्किट में कौन कौन कनेक्टेड है? एक एमीटर है, एक बल्ब है जिसे हम लोड कह रहे हैं, और साथ में एक बैटरी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? ठीक है, सेल तो जो सिंपल सेल होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में आप कंबाइन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस. एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्वाइट लो होती है, बहुत कम होती है. और सबसे अच्छा आइडियल एमीटर कौन सा होता है? आइडियल एमीटर इज दैट एमीटर हुज रेजिस्टेंस इज जीरो. आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस. Ammeter. This is a diagram of, symbol of, you can say, just picture of ammeter. See it carefully. इसमें क्या 2 टर्मिनल्स हैं, एक रेड और एक ब्लैक. नॉर्मली जो रेड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक इज नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, और इसकी ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्केल बना हुआ है, एक 0, then 2, 4, 6, 8, 10, और A लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स एमीटर. तो मतलब ये जो एमीटर है ये मैक्सिमम 10 एम्पियर मेजर कर सकता है. Now, this is the picture of milliammeter. See carefully. इसके सेंटर में क्या लिखा हुआ है? MA, स्मॉल m कैपिटल A. It represents milliammeter. इसमें जो रीडिंग आएगी वो मिली एम्पियर में आएगी. जो पिछला जो एमीटर था उसमें रीडिंग एम्पियर में आएगी, इसमें मिली एम्पियर में आएगी. तो इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग होगी वो होगी 100 मिली एम्पियर. इसमें भी वही 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Now next is microammeter.
सी द सिंबल ऑफ माइक्रो, बिल्कुल सेंटर में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, दिस इज माइक्रो एमीटर, और इसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, 500 माइक्रो एम्पियर। इसमें भी टू टर्मिनल्स हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, रेड के पास पॉजिटिव लिखा हुआ है और ब्लैक के पास नेगेटिव। दिस इज द पिक्चर ऑफ डिजिटल एमीटर, nowadays वी आर यूजिंग इन आवर लैब्स, ठीक है, डिजिटल एमीटर्स का भी यूज हो रहा है अब लैब्स में। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, लेट्स सी दीज आर द टू प्लेट्स, one plate has positive charge and other plate has negative charge, see carefully, now positive charge is moving from positive plate to negative plate, तो देखो जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, सिमिलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन वही होती है, सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखेंगे, नाउ दीज आर द टू प्लेट्स, नाउ प्लेट्स आर इंटरचेंज, दिस इज लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एंड राइट साइड इज पॉजिटिव, नाउ सी दिस नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and the direction of current is opposite, so we can say electric current flows in the direction opposite to the motion of electrons or negative charge, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट उससे अपोजिट फ्लो करता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेरी अमेजिंग। What is the difference between scalar and vector? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और अभी हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज सो? दो वी हैव डिस्कस्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट yet it is a scalar quantity. Why? It is because it follows the laws of scalars addition, not vectors addition. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप करंट को ऐड करते हैं तो जस्ट स्केलर एडिशन की तरह आप ऐड करते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्विच क्या होता है? एनी डिवाइस यूज्ड टू इंटरप्ट और इनिशिएट द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट इज कॉल्ड ए स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या तो इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है जब आप उसको ऑफ कर देते हैं, और जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो इनिशिएट करता है, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है। तो स्विच क्या है? एक डिवाइस है विच इंटरप्ट्स और इनिशिएट द फ्लो ऑफ चार्ज। या तो वो चार्ज को क्या करता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज को इंटरप्ट करता है, रोकता है, या उसको इनिशिएट करता है, स्टार्ट करवाता है, मूव करता है। तो दीज आर द सिंबल्स, सी केयरफुली। जो फर्स्ट जो है जस्ट लाइक ए ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट और बीच में गैप है, खाली है, खाली होगा तो दिस इज ओपन स्विच और यू कैन से प्लग की, और अंदर डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स क्लोज्ड स्विच और प्लग की इज क्लोज्ड। ओके, फर्स्ट केस में करंट फ्लो नहीं करेगा और सेकंड केस में यदि सेंटर में डॉट लगा हुआ है तो करंट फ्लो करेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ठीक है, स्विच क्या करता है, सेल और बल्ब के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक का काम करता है, तो सेल और बल्ब को आपस में कनेक्ट करता है, और अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको करंट को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्विच। इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और स्विच इज टर्न्ड ऑफ, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। यदि आप स्विच को ऑफ कर देते हैं, स्विच को ऑफ करने का मतलब है सर्किट को ब्रेक करना है कहीं से भी, ठीक है, जब सर्किट ब्रेक हो जाता है और स्विच मतलब ऑफ हो जाता है तो करंट जो है वो स्टॉप कर जाता है, करंट मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता, और बल्ब और एनी इंस्ट्रूमेंट विच वी हैव कनेक्टेड
across that circuit, that will not work, bulb will not glow. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है आपको, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है. कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, यदि कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो नेचुरली करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज होगा प्रॉपरली तभी उसमें करंट फ्लो करेगा. ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ of an electric current is called an electric circuit. This electric circuit has an electric bulb, an ammeter, a key and a battery, and others are these connecting wires. और ध्यान से देखेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज स्विच इज ऑन, वो ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा हुआ है. ओके. Schematic diagram of an electric circuit comprising a battery, an electric bulb, an ammeter and a plug key. प्लग की भी कह सकते हैं, स्विच भी कह सकते हैं. इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है आपको. ठीक है. ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें वो बता देगा 1 और 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड, एमीटर, वोल्ट मीटर, डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम दिए होंगे और आपने उन सभी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़कर आपने एक सर्किट बनाना होगा. तो सी इट केयरफुली. इसमें क्या है, हमें पता होना चाहिए बेसिक रूल जो हैं. जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है. जो की है, स्विच है, उसे भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बैटरी. नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर. तो यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है. आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट करना है. बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव से स्टार्ट करके फिर कहाँ जा रहा है, बल्ब में जा रहा है, देन एमीटर में जा रहा है, फिर की में, वापस नेगेटिव में. तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब and ammeter, or you can say through the external circuit. This is the example. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है. इसमें आपको क्या गिवन है, करंट गिवन है, दैट इज 0.5 एम्पियर, और आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स. 10 मिनट्स को आपने सेकंड्स में चेंज कर लिया तो इट इज़ 600 सेकंड्स. आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज आपने फाइंड करना है, आपने क्यू फाइंड करना है. ओके. तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्यू अपॉन टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आई टी. तो आई इज गिवन, टी इज गिवन, जस्ट मल्टीप्लाई. सो क्यू इज इक्वल टू आई डॉट टी. आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, टी है 600 सेकेंड्स. मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 300 कूलम, बिकॉज चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है. तो दिस इज द आंसर, चार्ज इज 300 कूलम. नेक्स्ट, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, कि डिफाइन 1 एम्पियर. बट यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कई बार. एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ लिख के आए थे एम्पियर. यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है वो आपसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन आंसर विल बी एम्पियर. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को आपने डिफाइन करना है, मतलब आपने डिफाइन करना है 1 एम्पियर. सो इसका क्या होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इसको आपने डिफाइन करना है. इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. Next is, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपके. तो यस, सी, चार्ज इज गिवन 1 कूलम. हमें क्या फाइंड करना है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू NE. N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन.
तो बन जाएगा आपके पास N इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q कितना था 1 कूलम और E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 है तो ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है, तो 10⁻+19 हो जाएगा और साथ में 1.6 का डेसिमल हटाओगे तो 10 एक और ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 तो आ जाएगा 1.6 का और उधर से हम एक ज़ीरो ले लेंगे तो वो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 16। तो जब आप 100 को डिवाइड करोगे 16 से तो आंसर आएगा 6.25। देन फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। आप किसी वायर में आप चार्ज को चाहते हैं कि चार्ज फ्लो करे, उसमें करंट हो, तो सिंपल आप एक वायर का पीस ले लो अपने हाथ में, आपको करंट नहीं लगेगा। तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट दे आर नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली। तो आप उस वायर में करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो आपको उस कंडक्टर के टू एंड्स पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, बिकॉज करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हमने कहा था कि बैटरी जो है एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो to make the electric charge to flow, we have to set up the potential difference across two ends of the wire or conductor. This potential difference may be produced by connecting a cell or battery across two ends of the wire. तो आप क्या करेंगे, उस वायर के टू एंड्स पे आप एक सेल और बैटरी कनेक्ट करेंगे, आइदर सेल और बैटरी, देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, बिकॉज वन एंड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा हायर पोटेंशियल और अदर एंड ऑफ द वायर जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा लोअर पोटेंशियल। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current is the work done to move a unit positive charge from one point to other. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डेफिनेटली देयर विल बी 2 पॉइंट्स। वो दोनों पॉइंट्स कहाँ होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कंडक्टिंग पाथ होगा उस पाथ के ऊपर कहीं भी आप 2 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज from one point to other. So potential difference का formula है, potential difference is equal to work done upon charge. So, or by symbols we can write V is equal to W upon Q. V is the symbol of potential difference. SI unit of potential difference is volt, denoted by capital V, because this is also named after the name of a scientist, Italian physicist. Okay, what's the name? Alessandro Volta. Alessandro Volta के नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा गया था वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क की जगह आ जाएगा 1 जूल और चार्ज की जगह आ जाएगा 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और वी कैन राइट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम।
Potential difference between 2 points in a current carrying conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. आपके पास 2 पॉइंट्स हैं उस कंडक्टिंग पाथ पे, उस 2 पॉइंट्स में आपने चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. कितना चार्ज मूव करना है? 1 कूलम. और कितना वर्क करना है? 1 जूल. इफ 1 कूलम of charge is moved from one point to other point and 1 joule work is done, then potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. Potential difference between 2 points in a current carrying conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other point. Potential difference is measured by an instrument called voltmeter. Potential difference को आप मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं? voltmeter. What is voltmeter? An instrument which measures potential difference between 2 points in an electric circuit is called voltmeter. voltmeter जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स. सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ एमीटर. उसमें सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिखा होता है, यहाँ पे सर्कल के अंदर कैपिटल वी लिखा होता है. वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट और वोल्ट मीटर. तो सी दिस डायग्राम. तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है? अक्रॉस रेजिस्टेंस. ओके, सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the points between which potential difference is to be measured. आपने जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन 2 पॉइंट्स के साथ आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस. आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है. दिस इज द इमेज ऑफ वोल्ट मीटर. सी केयरफुली, बिल्कुल सेंटर में क्या लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है. वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर और वोल्ट यू कैन से. तो इसकी मैक्सिमम रीडिंग कितनी होगी? दिस इंस्ट्रूमेंट विल मेजर मैक्सिमम 5 वोल्ट. इसमें भी 2 टर्मिनल्स हैं. वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक. Red stands for positive terminal and black stands for negative terminal. Difference between ammeter and voltmeter. तो ये हम वैसे पढ़ चुके हैं. Ammeter measures electric current, voltmeter measures potential difference. Ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel. Ammeter has low resistance, voltmeter has high resistance. Ideal ammeter has zero resistance and ideal voltmeter has infinite resistance. Next example, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. तो यहाँ पे आपको चार्ज गिवन है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट और आपको वर्क कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? वर्क. चार्ज गिवन दैट इज 2 कूलम, potential difference that is given 12 volt and we have to find work done. तो work done का फॉर्मूला होता है W is equal to VQ. तो both are given. V is 12 volt and Q is 2 coulomb. So just multiply. Answer is 24 joule. So work done will be 24 joule. These are the symbols of some commonly used components in electric circuit diagram. जब भी आप कोई सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप डायरेक्टली क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर इस तरह से आप टिपिकली बना नहीं सकते. उनके सिंबल्स हम यूज़ करते हैं. तो दीज ऑल आर द सिंबल्स विच वी यूज़ वाइल ड्राइंग द सर्किट डायग्राम. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है? एक उसमें एक लॉन्ग लाइन है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट लाइन जो है वो दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. तो इसको 2 लाइन्स से, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट. लॉन्ग इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट इज द नेगेटिव टर्मिनल.
और उसी तरह से जब आप 2 और मोर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, देन दैट इज द सिंबल ऑफ बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, स्विच का सिंबल है ओपन स्विच विदाउट डॉट, एंड फोर्थ इज क्लोज्ड स्विच विद ए डॉट। डॉट मीन्स यहाँ पे आपने एक प्लग की होती है, इसको आपने इंसर्ट करना होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द डॉट। वायर ज्वाइंट, इस तरह से जो है ये क्या है, इस शेप बनी हुई है परपेंडिकुलर टाइप और बीच में एक डॉट सा बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें क्या है, यहाँ भी 2 वायर्स आपस में क्रॉस कर रही हैं और ये कर्व सा बना हुआ है, तो इसका मतलब वायर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट टचिंग, देयर इज नो ज्वाइंट। नेक्स्ट, 7th, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। 2 सिंबल्स बनाए हुए हैं, कोई भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, 8th पॉइंट इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो एक जब स्ट्रेट होता है तो वो वायर होती है, कंडक्टिंग पाथ, इजी पाथ। ये जिग जैग पाथ जो है, मतलब ये इजी पाथ नहीं है, दिस रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस। एंड 9th पॉइंट पे ये जो है जिग जैग पाथ सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस विद एन एरो ओवर इट। एरो लगाएंगे तो 2 पिक्चर्स हैं यहाँ पे, एक सीधा एरो है, एक ये परपेंडिकुलर टाइप एरो बनाया हुआ है। ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस के, और यू कैन से रियोस्टेट। रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं। पॉइंट 8 पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। और पॉइंट 9 में जो ये रेजिस्टेंसेज हैं विद एन एरो, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं बाय मूविंग दिस एरो। नेक्स्ट, 10th is symbol of ammeter, circle with A in its middle, and 11th is symbol of voltmeter, V in the circle. Next question, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करना है, मेंटेन करना है, तो विच डिवाइस यू विल यूज? दैट डिवाइस विल बी आइदर सेल और बैटरी। वी हैव स्टडीड सेल और बैटरी की हेल्प से हम किसी भी कंडक्टर के 2 एंड्स पे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? Potential difference between 2 points is 1 volt. What it's mean? The same thing which we have studied earlier, means here यहाँ भी आपको define करना है 1 volt को। Potential difference between 2 points in a current carrying conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other point. Same here, you have to define 1 volt. Next, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? यहाँ पे क्या है, आपको how much एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और गिवन क्या है, to each coulomb of charge is 1 coulomb passing through a 6 volt battery. वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट, चार्ज गिवन है 1 कूलम, और आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी और यू कैन से वर्क, वन ऑफ द सेम थिंग, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्क और एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पोटेंशियल है 6 वोल्ट, चार्ज है 1 कूलम, जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर 6 जूल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।